الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا اپنے کلام مجید میں ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج انسان کی زندگی کی دوڑ دھوپ، صبح سے لے کر شام تک جس طرح آدمی دنیا کے کاموں میں مصروف ہے، دنیا کے کاموں میں بیزی ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے، پرسکون زندگی کی تلاش۔ پرسکون زندگی، سکھ والی زندگی، زندگیوں میں دکھ نہ ہو، ایک یہ مفہوم۔ دوسرا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی لائف سٹائل ایک سٹینڈرڈ لائف سٹائل ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے کبھی جھک کر چلنا نہ پڑے، اور ہر آدمی کی یہی خواہش ہے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کا سفر اسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ آدمی ہندوستان سے لے کر دبئی تک کا سفر بھی ایک اچھی زندگی کے واسطے کر رہا ہے۔ مقصد زندگی کا ایک اچھی لائف سٹائل چاہیے انسان کو، ایک اچھا سکون والا گھر چاہیے، سکون والی زندگی چاہیے۔ اسی لفظ کو، جس کو ہم رویل لائف کہتے ہیں، سٹینڈرڈ لائف کہتے ہیں، اسی لفظ کو قرآن نے آج سے 1450 برس پہلے بیان کیا کہ ہم انسان کی زندگیوں کو رائلٹی سے بھر دیں گے، ان کے لائف کو ایسا لائف سٹائل بنا دیں گے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ لفظ اللہ نے کلام مجید کے اندر حیاتاً طیبہ کے لفظ سے فرمایا۔ ہم اس کو بالطف زندگی عطا فرمائیں گے، پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پرسکون زندگی کے لیے کچھ شرطیں لگائی ہیں، اچھی لائف کے لیے کچھ شرطیں لگائی ہے، ورنہ انسان اچھا کما کر بھی آج خستہ حال ہے۔ انسان کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا بنگلہ ہے، اچھے بچے ہیں، اچھی بیوی ہے، اچھی جاب ہے، پھر بھی انسان تراس میں ہے، پھر بھی انسان مشکل میں ہے۔ اس کی کچھ نہ کچھ وجہ ہے۔ ایک آیت ہماری لائف سٹائل کو بیان کر رہی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی پرسکون ہو، تمہیں اطمینان والا، اطمینان بخش گھر حاصل ہو، تمہیں جو ہے گھومنے پھرنے کے لیے ایک عمدہ اور بہترین گاڑی ہو، اس گاڑی کے گلی سے گزرتے ہی بچے آپ کے گاڑی کے پیچھے پیچھے بھاگے، دیکھو کتنی بڑی گاڑی آئی ہے، اس گاڑی میں کتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ آج آدمی اپنا اسٹیٹس اس لیول کا بنانا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں تمہیں ایسی ہی اسٹیٹس والی زندگی دوں گا جیسا تم اسٹیٹس چاہتے ہو، مگر ایک کام کرنا، میرا بھی کچھ اسٹیٹس ہے۔ اپنے اسٹیٹس کو بنانے کے لیے تم میرے اسٹیٹس کو مینٹین کرو، میں تمہارا اسٹیٹس اونچا کر دوں گا، میں تمہارا مقام اونچا کر دوں گا۔ آج کے زمانے میں یہ الفاظ کا استعمال میں اسی لیے کر رہا ہوں، ہر آدمی آج اچھا اسٹیٹس چاہتا ہے، ہر آدمی آج اچھی لائف سٹائل چاہتا ہے۔ اس کے کچھ اصول قرآن مجید نے بیان کیے،
جس کے بغیر لائف اسٹائل اگر جتنا بھی اونچا ہو وہ انسان ایک جانور صفت بن جاتا ہے. جانور تو نہیں کہہ سکتے انسانوں کو, البتہ جانور صفت بن جاتا ہے. جانوروں کی صفت کیا ہے؟ جہاں کا ملے وہاں کا کھانا, جہاں جگہ ملے وہاں جا کے سونا. انسان بھی یہی چاہتا ہے, اور وہ یہ سوچتا ہے میں یہاں زندگی بنانے نہیں زندگی گزارنے آیا ہوں. یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی دنیا کی بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے, بلکہ آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے بھیجا ہے. جانور تو دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اگر انسان بھی صرف زندگی گزارنے لگ جائے اور زندگی بنانے کی فکر نہ کرے, یقین جانیے گا وہ نقصان میں ہے, وہ خسارے میں ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ابھارتے ہوئے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا یہی خیال ہے انما خلقتم کہ میں نے تم کو پیدا کیا عبثا, کیسے؟ بیکار. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پلٹ کر میری طرف نہیں آؤ گے؟ تم کو تو پلٹ کر میری طرف ہی آنا ہے. اس کے بعد قرآن نے ایک خطرناک جملہ استعمال فرمایا. ایک جگہ نہیں, قرآن کی سینکڑوں آیات میں وہ لفظ موجود ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ يَعْمَلُونَ. یہ قرآنی جو الفاظ ہیں ان کے مطالعے سے, ان کی گہرائی کو سمجھنے سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے. انسان دنیا میں گناہ کر کے بھول رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, لیکن اللہ آخرت کے احوال بیان کرتے ہیں. فَيُنَبِّئُكُمْ, تمہیں بتا دیا جائے گا, تمہیں باخبر کر دیا جائے گا. تمہارے سامنے دنیا کے اندر موت ہوتی تھی, تم قبرستان جا کر بھی منحوس پن اختیار کرتے تھے. تمہیں قبرستان جانے کے بعد بھی اپنے مرنے کا خیال نہیں آتا تھا. وہاں جا کر بھی تم بزنس کی بات کرتے ہو, وہاں جا کر بھی تم کھانے پینے کی باتیں کرتے ہو, قبرستان جا کر بھی تمہیں احساس نہیں ہوتا. فَيُنَبِّئُكُمْ, ایک کام کرنا, تم زندگی جتنی چاہے اللہ کو بلا کر گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں تمہارے زندگی کے سیکنڈ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے کہ تو کیا کیا کر کے آیا ہے. اور انسان تو بڑا نکما ہے, انسان تو اللہ کا بڑا ناشکرا ہے. ان الانسان لظلوم کفار, فرمایا یقیناً انسان اللہ کا بہت ہی بڑا ناشکرا ہے. بڑی عمارت میں رہتا ہے, اے سی میں آرام کرتا ہے, بڑی گاڑی میں گھومتا ہے, لوگ پوچھنے پر کہتا ہے کیا بولنا ہمارے حالات پہ. رب کی پھر بھی شکایت کر رہا ہے, رب سے پھر بھی جو ہے بدگمانی کا معاملہ کر رہا ہے. حالانکہ اللہ نے خوش رکھا ہے, حالانکہ اللہ نے بہت خوش رکھا ہے. یقین جانیے گا فٹ پاتھ پر سویا ہوا آدمی بھی کہتا ہے رب کی ہوا کھا کے خوشی سے زندگی گزار رہا ہوں. اے سی کی ہوا کھا کے کہتا ہے ہمیں ہمارا بہت گچھے. دیکھو لائف ہماری کتاب ہے, ہماری زندگی ایک دم اجاڑ ہے. دیکھو کتاب کھا رہا ہے اللہ کا, پی رہا ہے اللہ کا, اونچی لائف اختیار کیا ہوا ہے, اچھا سٹینڈ اللہ نے دیا ہے دنیا کے اندر, پھر بھی رب کی ناشکری میں زندگی گزار رہا ہے. اسی کو کہا اللہ نے ان الانسان لظلوم کفار, یقیناً انسان اللہ کا بڑا ہی ناشکرا ہے. دوسری طرف اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود, یقیناً انسان اپنے پروردگار کا نافرمان ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کے حالات بیان کیے, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. ایک مالک گھوڑا پالتا ہے, ایک مالک
घोड़ा पालता है, घोड़े के पालने के बाद मालिक अगर घोड़े की लगाम खींचता है तो घोड़ा रुक जाता है, मालिक अगर घोड़े की लगाम छोड़ता है तो घोड़ा भागने लगता है। इन आयात में भी इंसान को अल्लाह ने पैगाम दिया, घोड़े को भी मालूम है कि मालिक की फरमाबरदारी करनी है। ये इंसान इतना 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 नीचे गिर गया है, खाता रब का है, पीता रब का है, पहनता रब का है, सोता भी रब का नाम लेकर है, उठता भी रब के चाहने के मुताबिक है, मगर सुबह उठकर कहता है क्या करना, हमारी जिंदगी कैसी है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। क्यों? वयुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। इंसान की फितरत में अल्लाह ने माल की मोहब्बत रखी है। सुबह उठे तो लेबरा कैसा जमा करना, शाम हुई तो कल पगार कैसा देना। इसी जिंदगी में इंसान जो है इतना बिजी हो गया, रब को देने के लिए इसके पास वक्त बाकी नहीं है। और एक बात याद रखना, वक्त भी अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह ने अपना टाइम छीन लिया तो हम अल्लाह को अपना टाइम नहीं दे सकते। इंसान कहता है वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम तो अल्लाह की तरफ से बहुत था, ये बोलो तौफीक नहीं है। क्या नहीं है? तौफीक नहीं है। होटलों में चाय पीते हुए वक्त गुजारते हो और नमाजें कज़ा करते हो और अल्लाह को दोषी देते हो कि अल्लाह ने हमें तौफीक नहीं दी। चाय पीने की अल्लाह ने तौफीक दी हमको। लोगों का कहना यह है जब अल्लाह तौफीक देगा तभी पढ़ लेंगे, जब तौफीक नहीं देगा नहीं पढ़ेंगे। मुझे चाय पीने की तौफीक दिया, दोस्ता गनी बाता करने को, बगाड़ने को, बाता बगाड़ने को, मैं क्या करते रहा, अपनी जिंदगी गवा लिया। जब तौफीक देगा तब पढ़ूंगा। करता जुर्म खुद है, डालता रब पर है। कितना अजीब है ये इंसान। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्र है, बड़ा ही नाशुक्र है। अल्लाह के नजदीक मर्द हो या औरत, आमाल के एतबार से दोनों का तवाजुन बराबर है। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना वलिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबना। औरतों को भी उनके मुकद्दर का मिलेगा जो उन्होंने किया है, मर्दों को भी उनके मुकद्दर का मिलेगा जो उन्होंने किया है। आज सारी जिंदगी का एक ही मसला है, स्टैंडर्ड लाइफ बनाने के लिए आज हमने अपने रब को भुला दिया है। मसला यही है। मसला दुनिया कमाने का नहीं है, मसला दुनिया के पीछे लग जाने का है। हमको अल्लाह ने दुनिया कमाने से मना नहीं किया, दुनिया के पीछे लगने से मना किया। जब इंसान दुनिया के पीछे लगता है तो रब की मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारता है जिंदगी। इसीलिए एक आयत पढ़ी गई, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी मर्द हो या औरत हो, वह हुवा मुमिनुन, और वो क्या हो, मुसलमान हो, और वो नेक आमाल करने वाले हो। मोमिन के साथ क्या शर्त जोड़ी अल्लाह ने? मुसलमान होना काफी नहीं है, नेक अमाल। कुरान उठाकर देखिए, जहां जहां पर भी इन्नल्लज़ीना आमनू आया, उसके बाद व आमिलुस सालिहात का लफ्ज आया। यकीनन जो लोग ईमान लाए, सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, व आमिलुस सालिहात, नेकियों का करना भी जरूरी है। जो ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की, अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग मकामात पर उनकी अलग अलग फजीलतें बयान फरमाई। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। फरमाया जो ईमान लाए और नेक आमाल किए उनके लिए जन्नत में रब की तरफ से मेहमान नवाजी होगी। यह है ईमान और ईमान के आमाल करने पर मिलने वाला बदला। अल्लाह कहते हैं ऐ मुसलमान, तू ऊंची लाइफ हासिल करने के चक्कर में, बड़ी गाड़ी के पीछे घूमने के चक्कर में, बड़े बंगले के चक्कर में, अच्छी लाइफ के चक्कर में, लोगों के सामने अमीर दिखने के चक्कर में आज तूने मेरे अहकामात को तोड़ दिया। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा हुवा मुमिनुन, जो आदमी मुसलमान हो, नेक अमाल करे, चाहे मर्द हो या
औरत हो, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको स्टैंडर्ड लाइफ अता फरमाएंगे। फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको स्टैंडर्ड लाइफ अता करेंगे, हम उसको एक बेहतरीन जिंदगी अता करेंगे। हयातन तय्यबा का तर्जुमा मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब कुरानी इफादात में नकल किया है। फरमाते हैं कि हयातन तय्यबा का मतलब है बालुत्फ जिंदगी। कैसी जिंदगी? बालुत्फ जिंदगी का मतलब टेंशन फ्री जिंदगी अता फरमाएंगे। टेंशन फ्री जिंदगी के लिए क्या शर्त है? आमिला सालिहा, नेक अमाल का होना शर्त है। तुम लाखों कमाओ महीनों में, तुम्हारी जिंदगियों में अगर नमाजें नहीं है, तुम लाख कमाकर भी परेशान हो। तुम सोते एसी में हो, उठते एसी में हो, बाथरूम 15 लाख रुपए खर्च किया हुआ बाथरूम है, उस बाथरूम में तुम सुकून हासिल करते हो। याद रखना, यकीनन यकीनन इसमें सुकून नहीं है, सुकून फजर की 2 रकात नमाज में है। तूने स्टैंडर्ड लाइफ बनाई है ना अपनी, बाथरूम में रहना, उसमें टेल्सा में रहना, उसमें शावर में रहना, यो बटन मारा कि पानी गिरना, इतना फ्रेश होकर निकलना, ये सब स्टैंडर्ड लाइफ समझा आदमी। सोफे पे बैठना, नरम नरम गद्दी में बैठना, पैर फैला को बैठना, सामने टीवी रहना, उसके सामने बैठ को रब का रिज्क खाते रहना, इसको समझा आदमी की ये लाइफ स्टाइल है, ये स्टैंडर्ड लाइफ है। हमारे नौजवान ने समझा कि घुटने पर फटे हुए पैंट पहनो, लड़कियों को घूरते हुए घूमो और हबीसों की तरह बाल बढ़ाओ और कॉलेज के पीछे चक्कर काटते रहो, आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ते रहो, यही सबसे बेहतरीन जिंदगी है। हमारे नौजवानों ने इसको बेहतरीन जिंदगी समझी। कुरान तो अपोजिट कहता है, कुरान तो बरखिलाफ कहता है। कुरान कहता है मन आमिला सालिहन, जो नेक अमाल करे हुआ मुमिनुन, वो मोमिन हो। उसके बाद अल्लाह ने किया फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, उसके बाद हम उसकी जिंदगी को स्टैंडर्ड बनाएंगे। हयातन तय्यबा का तर्जुमा क्या आज के जमाने में? स्टैंडर्ड जिंदगी देंगे हम। लाइफ स्टाइल अच्छी तब है जब वो रब की मर्जी के मुताबिक गुजरती हो, वो लाइफ स्टाइल अच्छी है। गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा है, शराब कबाब में जिंदगी गुजार रहा है, और नौजवान कहता है जिंदगी रहे तो यूं रहना दे, रात को 12-12 बजे तक बोतल मारना, फजर के 9-9 10-10 बजे तक सोना, अम्मा बाबा जो कॉलेज में पैसा खर्च करें उनके उन पैसों को क्लास बंक करके अब्बा ने जो एटीएम और पेटीएम और जो मोबाइल दिया है और साथ में जो केटीएम भी दी है, उसके पीछे एक किसी की बेटी को लेकर घूमे, और यही अच्छी लाइफ है। कॉलेज बंक करो और फर्जी डिग्री हासिल करो, डॉक्टर बनकर अपने कान में जो है वो डॉक्टरी का सर्टिफिकेट पहनो और लोगों का इलाज भी जो है अपनी फर्जी डिग्री के मुताबिक करते रहो और पैसे ऐंठते रहो। यही बेहतरीन जिंदगी है, यही बेहतरीन जिंदगी। इसको इंसान ने बेहतरीन जिंदगी का नाम दे दिया, इसको इंसान ने सुकून वाली जिंदगी का नाम दिया। कुरान कहता है सुकून वाली जिंदगी रब की फरमाबरदारी वाली जिंदगी है, गुनाहों वाली जिंदगी को सुकून वाली जिंदगी नहीं कहते। सोच बदलो, सोच बदलो, फर्क सोच का है। इस आयत के ज़िम्न में मुफस्सिरीन किराम ने कुछ अक़वाल नकल किए हैं। हयातन तय्यबा का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड जिंदगी का क्या मतलब है, अच्छी लाइफ स्टाइल का क्या मतलब है। फरमाते हैं मुफस्सिरीन किराम, सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हयात जिंदगी, हयात तय्यबा यानी बेहतरीन लाइफ, पुरसुकून जिंदगी, सुख वाली जिंदगी का मतलब यह है रिज़्क़ हलाल का मिलना ही हयात तय्यबा है। किसका मिलना? कुछ बातें हैं तफसीर की किताबों में, तफसीर कुर्तुबी वगैरह में, नाम शायद आपको मालूम नहीं होगा। रिज़्क़ दुनिया के अंदर रिज़्क़ हलाल का मिलना ही अच्छी लाइफ है। एक आदमी बड्डी के पैसे को जिंदगी गुजार रहा, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहा, 5-5 उंगलियों में 5-5 सोने की अंगूठियां हैं, गले में सोने की चैन है और इस जेब में एक
आईफोन है, इस जेब में एक आईफोन है और समझता है कि यही बेहतरीन जिंदगी है, और पैर में वुडलैंड कंपनी के ऊंचे शू पहना हुआ है और लोगों के सामने पोज मारता हुआ फिर रहा है और अपनी जिंदगी को बताता है कि यही सबसे अच्छी जिंदगी है। उससे पूछना बाबा फजर पड़ा, उससे पूछना बाबा जिंदगी में 5 वक्त की नमाजें हो रही, बीवी बच्चों को भी हराम का खिला रहा है, बीवी बच्चे भी नाफरमानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, खुद भी नाफरमानी में जिंदगी गुजार रहा है और कहता है कि मेरी लाइफ देखो बहुत अच्छी है। आपका इंसान कैसा बोलो, कार में भी घूम रहा तो बड्डी के पैसे में कार में घूम रहा, घर में भी है तो वो लोन के पैसों के घरों में है, और ऊपर एक आयत लिखा हुआ है हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। उसके आगे की आयत नहीं पढ़ा उन्हें, लियब्लुवकुम, अल्लाह इसके आगे फरमाते हैं तुम्हारा रब इस नेमत के जरिए से तुम्हें आजमाना चाहता है, अशकुर अम अकफुर, तुम शुक्र करते हो या नाफरमानी करते हो। सूद के पैसे खा को बोले अल्लाह हमना खुश रखे, इसको स्टैंडर्ड लाइफ नहीं बोलते। नाफरमानी की जिंदगी, गुनाहों की जिंदगी में गुजर रहा है और कह रहा है अल्लाह का फजल है। अल्लाह का फजल नहीं है, बदतमीज है वो इंसान जो गुनाह करता है और उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ जोड़ता है। बात समझ में आ रही है? एक तो ये मतलब है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये भी बहुत बड़े अल्लाह वाले भी हैं और कुरान से इनका गहरा रब्त है। फरमाते हैं अपनी तफसीर की किताब में कि हयातन तय्यबा, स्टैंडर्ड लाइफ का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड लाइफ का मतलब फरमाया कनाअत वाली जिंदगी को स्टैंडर्ड लाइफ कहते हैं। कनाअत वाली जिंदगी मतलब जितना अल्लाह दिया उतने में खुश रखो जिंदगी गुजारने वाला, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड लाइफ। यहां अलमारियों में लाखों का पैसा है फिर भी हाथ सर पर रखो, अल्लाह क्या टेंशन की जिंदगी छोड़ो, महीना खत्म होते ईएमआई भरने का टेंशन। आज यही हालात उम्मत के हैं, इसीलिए इन हालात पर बता रहा हूं। बड़े बिल्डिंग में रहने को स्टैंडर्ड लाइफ मत को समझो, झोपड़े में हो, जवार की घट रोटी प्याज के साथ खा रहे हो और मामूली टिक्की दाल में जिंदगी गुजार रही है, लेकिन लुकमा हलाल का है तो समझ लेना आपसे पुरसुकून बंदा दुनिया में कोई नहीं है। आपसे पुरसुकून बंदा दुनिया में कोई नहीं है। झोपड़े में हो, दिन की 5 वक्त की नमाज, मामूली ऑटो चलाकर दिन का 500 कमाकर 100 रुपए मेंटेनेंस का निकालकर 300 रुपए घर में देते हो और 100 रुपए जो है पेट्रोल का निकालते हो या करंट का निकालते हो, समझ लेना आपकी लाइफ स्टैंडर्ड लाइफ है, क्योंकि आप हलाल पर हो, आप जो है रब की फर्माबरदारी पर हो, यही स्टैंडर्ड लाइफ है। BMW में घूम रहा है, स्कॉर्पियो में घूम रहा है और गॉगल लगाया है किसका? रेबल का, और पूरा सूद पर जिंदगी गुजर रही है और उन्हें समझ रहा है कि मैं बहुत स्टैंडर्ड लाइफ में हूं। निकम्मा है उन्हें, गलत फहमी में है, उन्हें तौबा करने की जरूरत है उसको। बात समझ में आ रही है? स्टैंडर्ड लाइफ कुरान ने आज से 1450 बरस पहले बोल दिया कि यही क्या है स्टैंडर्ड लाइफ है। नेकियां करना, रब के मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, इबादतों के साथ दुनिया कमाना, यही क्या है? स्टैंडर्ड लाइफ है। खुदा की नाफरमानी करते हुए जिंदगी गुजारने को स्टैंडर्ड लाइफ नहीं कहते। हयातन तय्यबा का यह मफहूम है। इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हयातन तय्यबा का क्या मतलब है। इमाम बैज़ावी, तफसीर बैज़ावी एक बहुत बड़ी किताब है, उसके अंदर इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस आयत के मफहूम में हयातन तय्यबा का मतलब खुशी और गम, मालदारी और तंदस्ती, यानी हालात जब खराब हो और हालात जब अच्छे हो, दोनों हालतों में भी रब के शुक्र का मिजाज पैदा हो जाए, यही हयातन तय्यबा है, यही स्टैंडर्ड लाइफ है। जब अल्लाह दे रहा था तो बोल रहे थे अल्लाह हमें अल्लाह के, एक मर्तबा अल्लाह ने छोटी मुसीबत में आजमाया तो बोल रहे अल्लाह को मैच मिला था कि आजमाने के वास्ते। नऊजुबिल्लाह, इसको स्टैंडर्ड लाइफ नहीं बोलते। शुक्र की जिंदगी को स्टैंडर्ड लाइफ कहते हैं, शुक्र की जिंदगी को स्टैंडर्ड लाइफ कहते हैं। ये जुमले में बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं। इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने नीचे और एक बात नकल फरमाई,
अल्लाह की रजा में, रसूलुल्लाह के तरीके में जो जिंदगी गुजरे उसी को हयातन तय्यबा, स्टैंडर्ड लाइफ कहते हैं। समझ में आई बात? एक छोटा सा जुमला है कुरान में, हयातन तय्यबा, हम उसको क्या अता फरमाएंगे? स्टैंडर्ड लाइफ अता फरमाएंगे। उसके लिए कुरान ने शर्त क्या रखी? मन आमिला सालिहन, नेक अमाल करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। ये कुछ मर्दों के सिलसिले में बातें थी, अब औरतें भी, कुछ औरतों को भी इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। आयत में औरत क्या समझती है? महीने में एक मर्तबा ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने थोपड़े को सजाना, अपने बालों को सजाना, अपने आई ब्रूश को सजाना, अपने जो है नाखून को जो है नील पॉलिश करना, और जो है मेहंदी के मुख्तलिफ रंगों से हाथों और पैरों को मेहंदी का रंग देकर बाजारों में जो है बगैर बुर्के के, पर्दे के बगैर घूमना, इसको हमारी मस्तूरात में हमारी माओ बहनों ने स्टैंडर्ड लाइफ समझा है। हालांकि स्टैंडर्ड लाइफ ये नहीं है, ये रब की नाफरमानी वाली लाइफ है, जिसको कुरान मजीद ने एक जुमले में औरतों के ताल्लुक से फरमाया, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, ऐ औरतों तुम जमाने जाहिलियत की तरह मटक मटक कर, ऊंचे ऊंचे हील्स पहनकर, बालों को मेकअप देकर, आज के जमाने में वाला तबर्रज न तबर्रुजल जाहिलियत का जो दौर है वो मेकअप का दौर है। पुराने जमाने की औरतें मेकअप नहीं करती थी, पुराने जमाने की औरतें सिर्फ बगैर पर्दे के घूमती थी। तो ये आयत नाजिल हुई, आज का दौर तो बगैर पर्दे का नहीं है, विथ फैशन पर्दा नहीं करती है, विथ फैशन, फैशन के साथ बेहिजाबाना घूमती है, फैशन के साथ जो है खुल्ला ऐसा समझती है कि हम इंडियन है, वी आर इंडियंस, हम इंडियन है, और हमारे रब ने हमें क्या फ्रीडम अता फरमाई है। फ्रीडम के नाम पे, आजादी के नाम पे हमारी मस्तूरात, हमारी माए बहनें जो रब की नाफरमानी की जिंदगी गुजार कर समझती है रॉयलिटी, इसे बोलती, लाइफ स्टाइल इसे बोलती। तो याद रखना, कुरान मजीद ने ऐसी लाइफ स्टाइल का इनकार किया और फरमाया, ऐ उम्मत की माओ, ऐ उम्मत की बेटियों, लाइफ स्टाइल ये नहीं है तुम हिजाब के साथ अपने घर के कमरे के अंदर वाले कमरे में 2 रकात नमाज पढ़ो, ये लाइफ स्टाइल है, ये हयातन तय्यबा है। मार्केटों में फुजूल घूमकर, अपने औकात को जाया करके और फैशन वाला लिबास इख्तियार करके, बचपन से लेकर जवानी तक भी अजीबो गरीब अंदाज के कपड़े पहनती हो, और तुम सेलिब्रिटीज को अपना फॉलोअर समझती हो, तो याद रखना, इसको तुम अगर अपने लिए लाइफ स्टाइल समझ रहे हो, स्टैंडर्ड लाइफ समझ रहे हो, तो याद रखना ये स्टैंडर्ड लाइफ नहीं है, ये किच्चड़ से भी गलीज जिंदगी है। एक ये बात। दूसरी बात, कुछ लोगों के नजदीक लाइफ स्टाइल का नजरिया बड़ा मुख्तलिफ है। यहूदो नसारा के तरीके पर चलने को अपना लाइफ स्टाइल समझते हैं। यहूदो नसारा का तरीका बोले तो वो तरीका जिस तरीके को अल्लाह और उसके रसूल ने पसंद नहीं फरमाया, उस तरीके पर चलने को क्या समझते हैं? ऊंची जिंदगी जीना, बा इसे जो बोलती है सो जिंदगी, एक है लाइफ स्टाइल कर समझते हैं। हालांकि बहुत मुख्तलिफ है। कुरान के नजरिए से, शरीयत के नजरिए से देखा जाए तो अजब मिजाज है। आदमी अपनी बहन के हिस्से का पैसा खाया हुआ है और उम्रा करके आके, हज करके आके लोगों के सामने हाजी का लेबल लगा लिया और कहता है लाइफ रहे तो ऐसी रना देखबा। वो जो बहन के पैसे खाया उसका क्या, उसका क्या? आप ऐसी जिंदगी को ऊंची लाइफ स्टाइल समझते हैं कि किसी के पैसे नाहक खाकर उसी की जमीन पर एक बिल्डिंग बनाए और आपकी औलादें खुश रहे। आपकी बहन जो है, जो बेवाह बन जाती है बास दफा, उसको उसके वरासत के पैसे नहीं मिलते हैं, वो बहन के दिल से कितनी बदवा निकलना। किसी की बदवाओं के साथ जीने को लाइफ स्टाइल नहीं कहते, स्टैंडर्ड लाइफ नहीं कहते। याद रखो, अगर कोई इस तरीके की जिंदगी गुजार रहा है, वो अच्छी जिंदगी में नहीं है, वो बद्दुआ वाली जिंदगी में है, वो जानवर सिफत वाली जिंदगी में है। तो आज से इरादा करो, स्टैंडर्ड लाइफ का जो मफहूम हमारे जहन में है,
उसको बदल दें हम लोग, उसको बदल दें हम लोग। रमजान में रोजे छोड़कर ख्वाहिशात पूरे करके चलते रहने को स्टैंडर्ड लाइफ समझे नहीं है, वो नजरिया बदल दो। रोजे फर्ज है, नमाजें छोड़कर और रब की नाफरमानी में जिंदगी गुजार कर आप समझते हैं और हम समझते हैं कि ये मेरी अच्छी लाइफ है, तो मेरी नौजवानों से दरखास्त है, ऐसी लाइफ स्टाइल को बदलो, शरीयत की लाइफ स्टाइल इख्तियार करो। शरीयत तो चाहती है कि तुमको उम्मत का बेहतरीन नौजवान बनाए। ऐ नौजवानों, मेरी आपसे दरखास्त है, आप ड्रग्स, गांजा या उसके नाम पर नशे की जितनी भी चीजें इस्तेमाल होती है और आपका रात देर तक 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक ऑटो में या कहीं चौराहे में बैठकर रातों के 3-3 बजे तक 2-2 बजे तक गैर महरम से चैटिंग करना या पबजी में अपना वक्त गुजारना, अगर आपने अपना लाइफ स्टाइल का स्टैंडर्ड इसी को समझा है तो आज से दूसरी तरफ फोकस करो, आज से दूसरी तरफ अपना नजर बदलो और सोचो कि हम जो कर रहे हैं ये रब की नाफरमानी वाली जिंदगी है। थोड़ा अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। अगर आप बियर पार्टीज कर रहे हैं, अगर कोई किट्टी पार्टीज कर रहा है, उनसे मेरी दरखास्त है कि वो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना छोड़ दे। वो अपनी जो है उम्र की जिंदगी को गंवाने, जो जिंदगी खत्म हो गई है, उस खत्म होने वाली जिंदगी पर अफसोस करते हुए बची हुई जिंदगी को रब की मनचाही के मुताबिक गुजार कर और ऐसी स्टैंडर्ड लाइफ बनाए कि रब अगर कल कब्र में पूछे कि मन रब्बू का, फरिश्ते अगर पूछे कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, तो हम पूरे ठोस एतिमाद के साथ जवाब दे सके कि हमारा रब अल्लाह था। जब हमें कब्र में पूछा जाए कि मन नबियों का, तेरा नबी कौन था, ऐसी स्टैंडर्ड लाइफ दुनिया से जी कर जाओ तो कब्र में बोल सके कि हमारा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कल कब्र में अगर पूछा जाए माँ दीनों का, तुम्हारा मजहब कौन था, हम इस्लाम पर इतना अमल करें कि इस्लामी जिंदगी को हम अपना स्टैंडर्ड बनाएं, इस्लामी जिंदगी को हम अपनी लाइफ स्टाइल बनाएं, तो कल कब्र में आसानी के साथ जवाब दे सकेंगे कि दीनी अल इस्लाम, मेरा मजहब क्या था, इस्लाम था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। नौजवानों से खुसूसी दरखास्त है, ट्रेंड और ब्रांड के पीछे पड़कर रब की नाफरमानी न करें। यकीनन याद रखना, आप जितना भी ट्रेंड को फॉलो करें या जितना भी ब्रांड को फॉलो करें, कब्र में आपको जाना 30 मीटर कपड़े के कफन में है। कोई जींस में नहीं जाओगे, कोई उम्दा कपड़े में नहीं जाओगे। आपका आईफोन प्रो 16 प्रो आपके साथ कब्र में नहीं आएगा। उसकी हिस्ट्री आप डिलीट किए होंगे ब्लू फिल्म्स को देखकर, उसकी हिस्ट्री अगर आपने डिलीट की होगी गंदे वीडियोस को देखकर, तो याद रखना वही हिस्ट्री आज तुम जो है माय एक्टिविटी के नाम से ऐप लेकर तुमने उसकी हिस्ट्री तो जरूर डिलीट की होगी, कब्र के अंदर तुम्हारी हिस्ट्री खोल दी जाएगी। उस वक्त तुम कहोगे फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। उस वक्त बंदा कहेगा, हे अल्लाह, ये मेरी कैसी हिस्ट्री की किताब है, मैंने गूगल ओपन करके तो हिस्ट्री डिलीट की थी, मैंने यूट्यूब ओपन करके तो हिस्ट्री डिलीट की थी, मेरे तो लाखों के सब्सक्राइबर्स थे, मेरे तो लाखों के फॉलोवर्स थे, आज कोई मेरा फॉलोवर्स मुझे फॉलो नहीं कर रहा है कब्र में। कुरान ने कहा फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, तुम समझते हो कि आपके दोस्ती का मेयार ऊंचा होना चाहिए, तो याद रखना अगर आपकी दोस्ती बेहयाई की तरफ जा रही है, यह आपका स्टैंडर्ड नहीं है, यह आपकी घटती सोच है, यह आपकी घटिया सोच है। आपकी दोस्ती उससे होनी चाहिए जिसे देखकर रब याद आए, आपकी दोस्ती उससे होनी चाहिए जिसे देखकर आखिरत याद आ जाए, आपकी दोस्ती
اس سے ہونی چاہیے جسے دیکھ کر قرآن یاد آ جائے, آپ کی دوستی اس سے ہونی چاہیے جسے دیکھ کر اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق کا مزاج پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ایسی لائف اسٹائل اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس لائف اسٹائل کو خود اللہ بھی پسند کرتے ہوں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ لائف اسٹائل پسند ہو. اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.